So let's move ahead to design our product, to develop our product. We could do, yeah, we have done the planning part of this in our previous class, and I think I'm hopeful that you have done this exercise कि आपने अपना कोर्स वहाँ तैयार कर लिया है, यानी आपने नाम तैयार कर लिया कौन सा कोर्स बनाना है, मेजर प्रीमियम कोर्स कौन सा होगा, लो कॉस्ट कोर्स कौन सा होगा, और जो आपका फ्री कोर्स कौन सा होगा. तो मैं बस आपसे जानना चाहूंगा इनपुट्स फ्रॉम योर साइड कि आपने उन 3 कोर्सेज का क्या नाम रखा है. प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स इन केस यू हैव आइडेंटिफाइड समथिंग, एंड इफ यू कुड नॉट डन देन आप लिख सकते हैं नो. नहीं किया तो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ. लक्ष्मी मैम, आपने कोई एक्सरसाइज इस डायरेक्शन में की हो तो प्लीज हम बात कर सकते हैं. सर एक्चुअली मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, वो मुझे आई वाज नॉट एबल टू डिसाइड हाउ टू स्प्लिट इट लाइक. यस यस यस, तो अभी हम बात कर सकते हैं, आप ही का केस लेके बात कर सकते हैं. यस प्लीज. तो आप मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ 5 लाइन बताओ और फिर हम उसमें से 3 चीजें निकालते हैं बाहर. आपका बेस्ट प्रोग्राम क्या है? मेरा तो अबैकस कोर्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग है सर. दैट्स ग्रेट. अबैकस कोर्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग हो गया आपका, एंड दैट इज योर मास्टर प्रोग्राम. कितने घंटे का प्रोग्राम है वो? सर वो तो एक्चुअली बहुत ही चलेगा. दैट इज लाइक आई वुड से 2 into 7 14 के ऊपर जाए सर. इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट 20 hours. 20 hours course. And how do you instruct them? How do you teach them this all? Basically with वो लाइव में थोड़ा बहुत होगा, because explanations जो पहले देना है that will have to be in the live mode. I have to show the introduce the tool and all that. तो पहले तो it is going to be live only. एंड रिकॉर्डेड में दे सकते हैं, लेकिन उसका असेसमेंट बाद में लाइव में करना है, लाइक आइदर क्लैरिफिकेशंस लाइव. So you are saying that would be a hybrid course wherein you think that there are certain modules those are required to deliver in live mode only, and there are some explanation kind of modules and topics which can be recorded and can be forwarded to them. Just go through them and then the learning can be accessed live. Yes sir. Yes, that's great. So the duration would be 20 hours. Now this 20 hours course is not exactly being demonstrated, means you cannot demonstrate it live to the people. And if you are not demonstrating this, then the people, how people will come to you, how they will know you, how they will reach you. Actually you have to demonstrate yourself, this program to masses, to majority of the people. Then what you have to do, how many exercises you have in this particular course, ma'am? Exercises यानी sir कितना टॉपिक्स इसमें कवर करते हो आप? There will be majorly 9 topics. 9 topics, that's good. Now what you have to do, so simple, you design a program of 60 to 75 minutes duration only. 60 to 75 duration, you can note it down with you. Sir, I'm doing that sir. 60 to 75 durations course, wherein first 15 minutes would be intro part and last 15 minutes would be Q&A. And the central 60 minutes, 45 to 60 minutes would be for your delivery, presentation, content explanation, and just to convince people, just to influence people. So you should have 45 to 60 minutes time to attract people, to persuade people. A lot of things are there. तो अभी आपको क्या करना है, इस 45 मिनट से 60 मिनट के ड्यूरेशन में मैम एक ऐसा चार्मिंग मॉड्यूल डालना है, यानी आपको 2-3 वो 9 चीजों में से 2 या 3 ऐसी चीजें निकालनी हैं जो करिश्मा दिखाए, जो जादू करे, जो चमत्कार करे.
समझना मेरी बात, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सो आई वेंट टू राम वर्मा। सो डू यू नो राम वर्मा, एनएलपी ट्रेनर? Yes, sir. हाँ, तो राम वर्मा called us and we were around 2000 people. It was a self sponsored free webinar, free workshop. Live workshop means physical workshop in a big hotel in Delhi, wherein lunch also was served from his side. वो भी उन्होंने स्पॉन्सर किया था, लंच, स्टेशनरी, एवरीथिंग। Okay. और वहां जाने के बाद when we were there, he started to demonstrate neuro-linguistic programming, and after 20-30 minutes, so when we started little boring, Okay. yes, just a minute. So we started boring, and at that time he came with a high energy, and he asked us just to stand up, and we stood up few people, and he asked, just tell me your mobile number, last 4 digit of your mobile number. And everybody started telling the last 4 digit of mobile number, and he kept writing it on that board which was there. It was a notice board there, marker board, and he started writing it continuously, and he asked around 20 to 30 numbers. 30 multiplied by 4, it became 120 numbers. And then he turned back and immediately started 1 2 3 4 5 7 8 9 8 7 8 1 and everything. जिस आदमी को खड़ा किया उसको पूछा, आपके लास्ट डिजिट ये है, 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 एंड पूरी पब्लिक सन्नाटे में थी। Right. My God, ऐसा कैसे हो सकता है? How this is possible? How one person can remember 30 numbers all of a sudden within 1 minute? What is this technique? And then he told, this is re-imprinting of mind, and this is not a magic, you also can do in case you practice it. Okay. लोगों को लगा कैसे? उसने कहा मैं सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा, यू कैन ज्वाइन मी 5 days प्रोग्राम, एंड आई गारंटी यू कि मैं 5 दिन में आपको ये सारा करिश्मा सिखा के दूंगा, आप ये जादू खुद कर सकेंगे। और आप यही नहीं, आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आपकी लर्निंग टेक्निक लर्निंग हो जाएगी, आप स्मार्ट लर्न कर सकते हो, आप बच्चों को करा सकते हो। लोग इतने इम्प्रेस हुए, देन पीपल स्टार्टेड टू आस्क द price for that particular course, and that particular course was at the cost of 52,000 at that time, and people took it on spot. Okay. अब मैं आपको बस, मैंने जो बात बतानी थी आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ये जो 20 घंटे का कोर्स है, आप लोगों तक नहीं, अगर आप वर्ड्स में बताओगे तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैं ना आप पूरा दिल खोल के रख सकते हो कि 20 घंटे में आप क्या पढ़ाने वाले हो। आप तो उस कोर्स में जो जादू हो, वो जादुई एलिमेंट्स 2-3 निकालो और पब्लिक में 45 मिनट में वो जादुई एलिमेंट डालो। और सत्या कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है, वो बहुत सच्ची बात कहता है। 20 घंटे का कोर्स आप जानते हो वो नहीं दिखता है। अब आपको 45 मिनट में वो दिखाना है जो बेचना है। तो आपको 45 मिनट के लिए उस 20 घंटे के पूरे कोर्स में से एक ऐसा जूस निकालना है, एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट निकालना है, उसकी एक झलक दिखानी है, उसका एक डेमो दिखाना है, ताकि लोग यहाँ आने के बाद दे शुड फील समथिंग चार्मिंग, समथिंग मैजिकल। वो इम्प्रेस होने चाहिए आपके उस 45 मिनट में, और इमीडिएट बाद उसके फिर आप अपने वो जो कोर्स है उसको पिच कर सकते हो। तो आपके केस में अभी 3 की बजाय इसको 2 कर सकते हो, यानी 20 घंटे का अब 3 कोर्स आपके ऐसे बन गए कि एक कोर्स तो ये आपका बन गया इंस्ट्रक्टर्स के लिए,
जिसका डेमो कोर्स 1 घंटे का डिजाइन कर लिया। सेम कोर्स आप बच्चों के लिए एक लो कॉस्ट कोर्स बीच में डाल सकते हो। 3 घंटे के लिए बच्चों की मेमोरी शार्प करने के लिए, उनको टेक्निक सिखाने के लिए, उनका मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी एनालिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 घंटे का प्रोग्राम बीच में डाल दो। तो अब आपके पास 3 प्रोग्राम हो गए। 3 प्रोग्राम में ये जो 20 घंटे का कोर्स है, हो सकता है 1 महीने में 5 लोग खरीदे। समझना मेरी बात, हो सकता है 1 महीने में 500 खरीदे, बट वो 5 और 500 निकलेंगे कहां से? वो वहां से निकलेंगे जो आपके फर्स्ट टाइम 60 मिनट या 90 मिनट के कोर्स में जिन्होंने एंट्री मारी और आपका जादू देखा। क्योंकि वो जादू देख चुके हैं, इसलिए अब आप उनके साथ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने विलिंगली आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, वो आपके लीड बने हैं, आपके कोर्स में आए हैं। अब आप उनके साथ रिलेशनशिप थोड़ी थोड़ी बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आपके यहाँ से कोई कोल्ड कॉल जाए, आपके यहाँ से कोई ऑफर जाए, आपके यहाँ से जब भी बैच शुरू होता हो तब उनको इंफॉर्मेशन जाए, आपके यहाँ से कोई न्यूज़लेटर जाए, जब उनको ये बार बार चीजें उनकी निगाह के सामने जाएंगी, क्योंकि वो आपके एक सेशन में आके आपसे इंप्रेस हो चुके हैं, आपकी इमेज उनके दिमाग में बन चुकी है, अब वो आपका 20 घंटे का प्रोग्राम खरीदेंगे। पता नहीं आज जिसने देखा वो आज खरीदेगा या आज से 1.5 साल बाद खरीदेगा, पर वो आपके कहीं ना कहीं सर्किल में, आपके रडार पे आ गया है, और उसके दिल में, उसके मन में आपके प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह और जरूरत है, इसलिए वो आपके 60 घंटे से 90 मिनट के कोर्स में आया है। फ्री में आया है, पर 90 मिनट तो उसने स्पेंड किए हैं, इसका मतलब उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, इसलिए वो आया है। अब उस जरूरत के छोटे से बीज को आपको पेड़ बनाना है उसके दिल में, और वो मार्केटिंग करेगी आपकी, फिर वो परचेज करेगा आपका। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है मार्केटिंग का, और आपको हो सकता है आज किसी को पहली बार लगा हो तो ये ऑड लग सकता है, बट ये बिल्कुल फैक्ट है। मार्केटिंग ऐसे ही जाती है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग डिलीवरीज, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ऑलमोस्ट इसी तरीके से जा रही है। आप देख लो, जितने भी ट्रेनर्स हैं सब या तो फ्री वेबिनार दे रहे हैं या कोई लो कॉस्ट वेबिनार दे रहे हैं, आपको वहां बुला रहे हैं, आप उन्हें मिल रहे हो, आप उन्हें सुन रहे हो, आप उन्हें देख रहे हो, आप उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आपको अच्छा लग रहा है तो आप खरीद रहे हो। ऑल ऑफ सडन अगर कोई, मैं आपको कहूं कि मैम मेरा 20 घंटे का प्रोग्राम ले लो, you are not going to trust me. Who am I? You do not know. Got my point? Yes, sir. Very clear, sir. Yes. अब ये 3 प्रोग्राम आपको, इनकी आज ही आपको नींव डालनी है। एक 90 मिनट का प्रोग्राम जिसमें 2-3 मॉड्यूल ऐसे डिजाइन करना जो बहुत ही मैजिकल हो, उनको आप निकाल सकते हो, बिकॉज यू आर डॉक्टर ऑफ योर सब्जेक्ट एंड दैट्स योर बेबी। फ्री वेबिनार जो है वो ऑफलाइन करने का कि ऑनलाइन करने का? ही अगले कई महीनों तक ऑफलाइन के कंडीशंस नहीं है। डेली लॉकडाउन बढ़ रहा है, आज दिल्ली 6 दिन के लिए बंद हो गया है, तो अगर आपको ऑनलाइन डिलीवरीज में आना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी जमानी है, तो जितने दिन ये कोरोना चलता है, ये समझ लेना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी इन दिस कैलामिटी। लोग जितने घर बैठेंगे उतना आपका काम ज्यादा बढ़ेगा, लोगों के पास जितना टाइम होगा आपके वेबिनार्स में उतने ज्यादा आएंगे। वेबिनार्स में एक और अच्छी बात है कि आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस बहुत इजीली बिल्ड हो जाता है, तो यू कैन डू इट इजीली, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू। द डे यू आर गोइंग टू लॉन्च योर फर्स्ट वेबिनार, वी वुड बी देयर टू सपोर्ट यू, वी कैन ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार फॉर यू। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ कंटेंट तैयार करना है, आपकी मार्केटिंग भी, अगर आपका मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम पहली बार मार्केटिंग सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे स्प्रेड करना है, कैसे आप आगे बढ़ोगे, बस आप अपना कोर्स कंटेंट बनाओ 60 मिनट का। और अभी वो 20 आवर्स का अगर बिल्कुल रेडी नहीं है ना, डोंट वरी, वो बनते रहने दो, क्योंकि अभी ऑल ऑफ सडन उसको खरीदने वाले, अगर अभी तक नहीं खरीदा किसी ने, तो अभी खरीदने वाले ऑल ऑफ सडन नहीं आएंगे, पहली वेबिनार में भी शायद नहीं खरीदा जाए, उसको चलने दो जैसे ही, और बेचना शुरू कर दो। अगर उसमें कमी है और कुछ पूरा नहीं है, वो पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक।
मेरी गारंटी है जिस दिन आपको प्रेशर आ गया ना, एक फीस भी जमा हो गई आपकी, उस दिन आप सारी कमियां रात को नींद भगा के अपनी पूरी कर दोगे उस कोर्स। वेरी ट्रू सर, टोटली एग्री। यस, तो आप बनाने के चक्कर में ज्यादा मत रहो, बेचने के चक्कर में शुरू हो जाओ। बनाओ, सिर्फ आप वेबिनार के लिए प्रोडक्ट तैयार करो और उसको लॉन्च करो, क्योंकि 3, 4, 5 वेबिनार लगेंगे आपको परफेक्टली डिलीवर होने तक। शुरू में जो लोग आएंगे, अभी अपने रिश्तेदारों को बताना भी मत, दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताना भी मत कि आप वेबिनार कर रहे हो। अदरवाइज अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव अगर आपके वेबिनार में है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपको ध्यान वही रहेगा कि somebody is there. You let the newcomers come over there. बिल्कुल अननोन लोगों को आने दो, so that आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपकी अगर कोई गलती भी होती है तो होने दो, नए लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप अपने प्रोडक्ट के डॉक्टर हो सकते हैं, बट जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन होना होता है। और स्पोक्स पर्सन जब आप बोलने जाते हो, भीड़ चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ब्लैंक हो जाते हैं थोड़ी देर, पता नहीं टॉपिक कहां से कहां मिक्स होता है माइंड में। तो ऐसे में हमें क्या करना है, 3, 4, 5, 6, 8 बार धीरे धीरे जब हम वेबिनार करते जाएंगे, हर एक वेबिनार आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती जाएगी, इनहेंस करती जाएगी। हर एक वेबिनार में, फ्री वेबिनार में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और जब 3, 4, 5 बार ये हो जाएगा, फिर आप बड़े सॉलिड तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे जिसको आप बेचना चाहते हो। अभी तो आप जैसे ही कहोगे ना लास्ट में, पहली बार तो मुंह से आवाज नहीं निकलती कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। एक प्रोफेशनल्स के लिए एक मार्केटर बनना नॉट सो इजी। आप प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, बट बेचने के टाइम पे अंदर से शेकिंग होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट अ मार्केटर, यू आर अ प्रोफेशनल ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आपको मार्केटर बनना है, अब वेबिनार में तो मार्केटर बनना है और लोगों को दिखाना है कि यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। आप इसमें चमत्कार कर रहे हो, आपने रिसर्च की है, आपने कुछ क्रिएट किया है, आप कुछ डिफरेंटली एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो। और प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं, उस प्रोडक्ट से जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है। ये अफर्मेशन जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, और ये 3, 4, 5 बार जाएगा, तब आप दौड़ना शुरू करेंगे। तो अब मैं जहां तक मुझे लगता है हम सबके लिए मैसेज आ गया है। तो 3 आपके कोर्स डिजाइन हो गए। अगर किसी को और अभी यही ऑन स्पॉट करना है तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज 1 on 1 कल कर लेंगे। मैं आपको आज प्रोडक्ट को डिजाइन करने के कुछ इनपुट्स दे देता हूं। चलिए, जितेंद्र जी ने कुछ लिखा था। जितेंद्र जी, हम 1 on 1 कल कर लेंगे आपके प्रोडक्ट पे, और मैं सिर्फ आज, क्योंकि टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा आज। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू, मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। हम सब माइक ओपन कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग हैं ग्रुप में, तो बड़े आसानी से हम इंटरेक्टिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लेसन 3। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। ग्रेट। चलिए, हमारे 2 तरह के कोर्सेज हमें डिजाइन करने हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। 1 live course to demonstrate your expertise, to demonstrate your product, to demonstrate your services, to demonstrate whatever experience and knowledge you are carrying and possessing with you, and what is your spirit inside, how you want to help others. So वो सब लाइव कोर्स में आएगा। एंड सेकंड, रिकॉर्डेड। तो 2 तरह के कोर्स हमें ऑनलाइन में बनाने, लाइव और रिकॉर्डेड। आज हम एक लाइव कोर्स के लिए आगे बढ़ते हैं। लाइव कोर्स में हमें सिंपली कितनी रिक्वायरमेंट्स है? देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स ओनली। 1 is MS PowerPoint presentation. In place of PowerPoint presentation, you can take a mind map also. But creating mind map is not so easy as the Microsoft PowerPoint is. That's why I have taken this easiest thing to learn first, because you require expression only, and on Microsoft PowerPoint expression comes out very easily
a layman person also can create a good and attractive presentations with Microsoft PowerPoint. तो इसलिए PowerPoint को लेके चल रहे हैं. एंड सेकंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म. दूसरा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, लाइक Zoom, वेबिनार ज़ैम, GoToMeet, गूगल मीट. ये आपको अभी परचेज नहीं करना है. जब तक आप 1, 2, 3, 4 वेबिनार ना कर लें तब तक यू नीड नॉट टू परचेज इट. व्हाट यू कैन डू, हमारा वाला जो प्लेटफॉर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यू कैन यूज इट टू स्टार्ट इट. हमारा जिस टाइम पे वेबिनार नहीं होता, आप उस टाइम पर 90 मिनट्स के लिए इसको आप ले सकते हैं एंड यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर दैट. आपका कौन सा? जिस पर मैं अभी कर रहा हूँ Zoom. कैसे यूज करने का आपका प्लेटफॉर्म? मेरे प्लेटफॉर्म का मैं राइट आपको दे दूंगा, यानी हम अपना राइट आपको ट्रांसफर कर देंगे और आपका वेबिनार हम यहाँ से ऑर्गेनाइज कर देंगे. यानी वेबिनार को हम स्टार्ट कर देंगे, लिंक क्रिएट कर देंगे, आपको एज ए प्रेजेंटर इंट्रोडक्शन देकर हम आपको हैंडओवर करेंगे, आप डिलीवर करोगे, बैक एंड में हम कंट्रोल करेंगे आपका वेबिनार, और आपको कोई इसकी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से आपको बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी इंफ्रा खरीदने के, क्योंकि जब तक आप सोफिस्टिकेटेडली एंड स्मूथली वेबिनार कंडक्ट करना नहीं शुरू कर देते, तब तक आपको ये कॉस्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी रिकरिंग कॉस्ट है, मंथली एक बड़ा अमाउंट इसका जाता है. तो आपको इसका अमाउंट खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. अभी हमारे वाला आप यूज कर सकते हो. दैट्स चॉइस विद यू. Otherwise, okay, very nice, thank you very much. Okay, welcome sir. So Otherwise, monthly, just for the sake of knowledge, monthly क्या cost होता है? In case you are going to use the meeting subscription of Zoom, then it charge around 1200 rupees per month. Okay. And in case you are going to have a webinar subscription, then it charge around 6,000 rupees approx for 1 month. So what is the difference between meeting and webinar? In webinar, you can, in webinar there are certain facilities कि वो मैं आपको एक अलग से बता दूंगा, अभी बता देता हूँ. मीटिंग में अभी आप और मैं यहाँ 6 लोग हैं, हम we are 6 people here, तो हम 6 के 6 लोग दिखाई दे रहे हैं. वहां वेबिनार में एवरीथिंग इज मास्क्ड. आप बोल रहे हो और एक व्यूअर को सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो, बाकी सिस्टम में कौन कहाँ है कुछ नहीं पता. एवरीथिंग इज मास्क्ड एंड कंट्रोल्स आर सेफ, सिक्योर, मोर सिक्योर. और वहां आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी होती है कि आप ओपन रूम करके सबको बिठा के ओपन डिस्कशन कर सकते हो और कंट्रोल रूम्स बना सकते हो. यानी एक आपका कंट्रोलर बैठा है, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग ऑन योर बिहाफ. तो उसमें और इसमें ये फर्क होता है. कुछ और फैसिलिटीज हैं जो मैं आपको अलग से बता दूंगा. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का अभी आपको वेबिनार वाला सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है. You can start this hours one. You can take the free version, which is free for 45 minutes. 45 मिनट के लिए फ्री में यूज होता है, बट उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं है. That's the issue. तो वो ले सकते हैं, या फिर पे करके लेना है इनका, तो ये वाला मीटिंग वाला ले सकते हैं. अभी आपको हायर वर्जन्स पे नहीं जाना. जब तक आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर नहीं हो जाते, जब तक आपके महीने में 3, 4, 5 वेबिनार्स कंडक्ट नहीं होती, तब तक आप ज्यादा पैसा ना खर्च करें. तीसरा हमें चाहिए होगा डिलीवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. डिलीवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सत्या बताते हैं कि पूरा हमें स्टूडियो लगाना होता है, बट इस स्टूडियो में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं. योर लैपटॉप इज रिक्वायर्ड देयर, वन माइक लाइक दिस, एक माइक्रोफोन, and one good camera. In case your laptop has a good camera, web camera, then it suffice you need. Otherwise, you would require one web camera and one light and one like this backdrop. एक पर्दा. इतनी चीजें आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, और इससे आपका वेबिनार कंडक्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरह. माइक कौन सा खरीदने का? माइक आपको बोया का ले सकते हैं. नहीं, बोया नहीं, ये मैंने स्नाइजर का यूज कर रहा हूँ. स्नाइजर का एक माइक है एंड इट कॉस्ट अराउंड 3000 to 3500. उसके अलावा एक आता है लॉजिटेक.
लॉजिटेक कहाँ ऑनलाइन मिलता है? ऑनलाइन अवेलेबल है, हाँ ऑनलाइन अवेलेबल है, 3500 में लॉजिटेक है। और मैं सजेस्ट करूंगा बजाय ये आपका ईयरफोन वाला लेने के, एक सत्या के सामने वो रखा होता है, आपने देखा होगा, एक बहुत ही अच्छा ब्लू येती का माइक होता है। वो ब्लू येती का माइक दैट कॉस्ट अराउंड 12,000, बट उसका एक दूसरा वर्जन आता है, वो 4 to 5,000 में आता है, तो आपका कान भी फ्री हो जाता है, वो आपके सामने रख के दोनों काम कर सकता है। सो दैट्स सोफिस्टिकेटेड टू यूज और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप वो ले सकते हैं। ईयरफोन नहीं है? हाँ, ईयरफोन की हेडफोन? जरूरत नहीं, ईयरफोन की जरूरत नहीं होती उसमें, हेडफोन की जरूरत नहीं होती सर। और माइक कहाँ फिक्स होता है वो? लैपटॉप पे लग जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसे करके अब हम आगे बढ़ते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारी यानी कैसे तैयार करें। अच्छा। और और कैमरा कौन सा यूज करने का? कैमरा लॉजिटेक ले सकते हो 270, और 270 लॉजिटेक है ये। आपका HD रेजोल्यूशन है 720 में। इसके अलावा आता है 3110, 3110 कॉस्टली हो जाता है, और ये मैं जो बता रहा हूँ 270 ये अभी शायद 2500 की कॉस्ट में अवेलेबल है। और इसके ऊपर वाला जो वर्जन है वो 9000 अप्रोक्स में है, पर बहुत अच्छा कैमरा है, वेब कैमरा। और इसको अगर आपका मोबाइल फोन फ्री है तो आप मोबाइल फोन को भी वेब कैमरा बना सकते हो। एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल कंप्यूटर में, उस एप्लीकेशन को कंप्यूटर में और मोबाइल में दोनों में इंस्टॉल कर लें तो आपका मोबाइल फोन भी वेब कैमरा बन सकता है। अच्छा, कौन सा एप्लीकेशन हो? वो मैं एक बार देख के बताऊंगा, बहुत पहले मैंने यूज किया था, तो बट एक और एप्लीकेशन है। लाइट जो है वो सामने होनी चाहिए ना? लाइट सामने हो ताकि आपके फेस पे वो लाइट चमके। अगर नेचुरल लाइट में आप वेबिनार करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर नेचुरल लाइट नहीं है तो आप कमरे में सामने 2 बल्ब लगा सकते हो, रिंग लाइट ले सकते हो, अम्ब्रेला लाइट्स ले सकते हो, और ये आपका एक स्टूडियो तैयार हो जाएगा। हार्डली अगर लैपटॉप और स्मार्टफोन आपके पास हैं तो 3000 एंड 36 and 7 and 3 10,000 रुपीज में ये सारा अरेंजमेंट हो जाता है आपका। मतलब 3000 माइक का, 3000 माइक का, 2-3,000 आपका कैमरे का, अगर कैमरा लेते हो 6 and 3,000 लाइटिंग का, 9 and 1,000 अप्रोक्स ये सेटअप आपका बैकड्रॉप और ये छोटी मोटी चीजें, 10,000 रुपीज में आपका सेटअप लग जाएगा। अच्छा। सर वापस बताएंगे जी, लाइट के बारे में वापस बोलेंगे आप? यस, हाँ, लाइट में 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक लाइट तो हमारी रिंग लाइट आती है, मैं आपको रिंग लाइट दिखाऊं, 1 मिनट, आपको अगर दिखाई दे तो ये लाइट आपको दिखाई देती होगी इधर। हम्म, 1 मिनट, ये रिंग लाइट और ये एक स्टैंड पे खड़ी है, और ये स्टैंड और रिंग लाइट सत्या ने खरीदा था 3,400 अप्रोक्स का था। और बल्ब का? हाँ, वो बल्ब सब उसी में आता है, एवरीथिंग इज इनबिल्ट, वो सब उसी में है। नहीं सर, लेकिन वॉटेज कितना है बल्ब का? बल्ब का वॉटेज? वॉटेज तो मुझे भी नहीं पता, बट इसमें एक वॉल्यूम है जो लाइट को मैनेज कर सकता है, उसको ग्लो को मैनेज कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी को मैनेज कर सकता है। ओके वॉटेज इसके पीछे लिखा होगा। ओके सर, नहीं, we don't need to get into the details. नहीं, generally I ask. तो वो आप जब भी आप सर्च करोगे तो वो मेरे हिसाब से 1-2 ऑप्शन ही आते हैं ये रिंग लाइट में ओके सर, ऑनलाइन। ओके सर। और ये बहुत अच्छी रिंग लाइट है, सत्या ने 2 खरीदी थी, एक मुझे भेजी, एक उनके पास है। ये 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से अच्छा जब परचेज करोगे ना आप, तो आप तब बात कर सकते हैं फोन पे इंटरनेट से कुछ ऑप्शंस निकाल के, और फिर उसको 1-on-1 डिस्कस करके हम फाइनल कर देंगे। आप कहीं से भी परचेज करना, प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे ताकि एक चीज पर 2 दिमाग लग जाए। राइट। और अगर कुछ परचेज करते हो तो उसको ग्रुप में पोस्ट कर देना कि आपने कहाँ से क्या परचेज किया, ताकि ग्रुप में दूसरे लोगों को भी रेफरेंस मिल जाए। ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं
उस 60 मिनट के लिए अंजू मैम ने लिखा है आहूजा के माइक बहुत अच्छे हैं। एब्सोल्युटली राइट, आहूजा के माइक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। चलिए 8 बातें आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंप्रेसिव एंड इन्फ्लुएंसिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स क्रिएट करके लाइव पर देने के लिए। हम 8 बातें अगर ध्यान में रखें तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उससे लोगों को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ऐसी क्या 8 बातें हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक कोर्स में जब भी हम पीपीटी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें 7 चीजें तो मैंडेट होती हैं। अगर उनको इस तरीके से रखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनेगा। हम अपनी प्रेजेंटेशन इसी थीम पर बनाते हैं। रादर हमने ये सब कहीं पढ़ा नहीं है, बट हमने एक्सपीरियंस किया है। जो हमने एक्सपीरियंस किया है वही आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो टाइटल स्लाइड है वो टाइटल स्लाइड बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये इसका जो ऑर्डर होगा वो पहले टाइटल स्लाइड, फिर एक ऑब्जेक्टिव स्लाइड, फिर एक फॉर्मेट स्लाइड, फिर इंडेक्स स्लाइड और फिर उसके बाद जनरल टू स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन करती हुई कुछ स्लाइड्स बीच में होंगी। वो आपका 1 से ज्यादा स्लाइड हो सकती हैं। बट अगर आप 60 to 90 मिनट के लिए प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हो, 60 to 90 मिनट, तो प्लीज टोटल स्लाइड्स 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। हर एक स्लाइड पर रुककर समझाने के लिए आपके पास ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। रादर आप पिक्टोरियली सामने दिखाई दे रहा है उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, जितना ज्यादा कर सकते हो। वो आपकी लर्निंग को रीइंफोर्स करता है, वो लोगों को इंप्रेस करता है। अगर सिर्फ स्लाइड्स को मूव कराते गए आप, लोग बना लेते हैं 50 स्लाइड 60 स्लाइड और उनको मूव कराने में 1.5 घंटा निकल जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां हुआ, क्योंकि वो सिर्फ कंटेंट फ्लैश हो रहा होता है। और वो कंटेंट फ्लैशिंग के लिए कोई आता नहीं है। किताबें और डेटा और नॉलेज बहुत भरा पड़ा है ऑनलाइन। लोगों को 1-on-1 टच चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब वो लोग अपना काम छोड़ के आपके सामने बैठे, तो आप समझाओ जितना समझा सकते हो। ये कला है। अब इस कला के लिए हमें क्या करना है, लिमिटेड स्लाइड्स रखनी है। तो शुरू की 4 स्लाइड मैंडेटरी हैं, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेट और इंडेक्स। लास्ट की 3 मैंडेटरी हैं। अगर ये लाइव कोर्स है, आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड लास्ट स्लाइड जो है आपकी, वो ऑफर फॉर प्रीमियम कोर्स होना चाहिए। जो कुछ आप बेचना चाहते हो इस कोर्स के थ्रू, फ्री वेबिनार किया या लो कॉस्ट वेबिनार किया, इस वेबिनार में जो कॉस्ट आपकी लगी है वो इससे पूरी नहीं हुई, बशर्ते आप एक बड़े प्रोडक्ट को पिच करना चाहते हो। तो थर्ड लास्ट स्लाइड पे जैसे ही टॉपिक खत्म हो, इमीडिएटली उस समय क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही होती है लोगों में। जब आप पूरी तरह चमत्कार दिखा रहे होते हो लोगों को, उस समय क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ओपन कंडीशन में होता है, सेंसेस ओपन कंडीशन में होते हैं, उनको और चाहिए होता है, और पूरा कंप्लीट। क्योंकि आप कहते हो कि जो मैंने चमत्कार दिखाया आप देख तो सकते हो 1 घंटे में, पर सीखने के लिए 20 घंटे चाहिए आपको। और सीखने के लिए 20 घंटे वही लगाएगा जो इस चमत्कार को वास्तव में अपनी जिंदगी में आजमाना चाहता होगा और अपनी जिंदगी में इससे फायदा उठाना चाहता होगा, जो वास्तव में ये चमत्कार दूसरों की जिंदगी में करना चाहता होगा। लोगों को लगता है व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट कंप्लीट। जब वो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, बस उसी समय वही वक्त होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को पिच करें। और आप उस समय प्रोडक्ट पिच कर देते हो, उसके उस टाइम पर और दूसरी चीज के लिए वो पूरी ऑडियंस तैयार नहीं होती। लोग क्या करते हैं, सेकंड लास्ट स्लाइड को वहां ले आते हैं, Q&A। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे ही क्वेश्चंस की बारी आई, आधे लोग ड्रॉप करके निकल जाते हैं फ्री वेबिनार। तो Q&A सेशन की स्लाइड आने से पहले आपका ऑफर स्लाइड आ जानी चाहिए। जब क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए, जब समा बंध जाए, तब आप अपने ऑफर स्लाइड दो। ऑफर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ।
प्रोफेशनल्स का, ट्रेनर का कॉन्फिडेंस हिलता है जब वो ऑफर दे रहे होते हैं। कंटेंट डिलीवर करने में वो मास्टर है, पर अपना ऑफर देने में वो हिल जाते हैं। तो उस समय बहुत शिद्दत से ऑफर देना है। जितनी कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ आप ऑफर को रखोगे, काम बनेगा, लोग खरीदेंगे, तैयार होंगे, नहीं तो समझेंगे। उसके बाद फिर आप Q&A दो। अच्छा, अब पूछो, आपको मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना है, जो मैंने कुछ बताया था उसके बारे में पूछना है। फिर लोग दोनों के क्वेश्चंस पूछे। अब आपने देखा एक ही Q&A सेशन में आपने दो चीजें मिक्स कर दी। अब दोनों के क्वेश्चंस आएंगे, फीस कितनी है, ड्यूरेशन कितना है। कुछ क्वेश्चंस को सारे मत खोलो, आप कुछ को बंद रहने दो ताकि लोग क्वेश्चन पूछे, उनके दिमाग में चकाचौंध हो, कुछ सवाल खड़े हो, ताकि Q&A के 15 मिनट के लिए मसाला हो आपके पास। ये मसाला निकालने के लिए आपने प्रोडक्ट ऑफर रख दिया, फिर Q&A किया, और फिर थैंक यू स्लाइड में नीचे कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेटर है। ये 7 स्लाइड मैंडेट है, मैंडेटरी रखनी है, रखोगे तो बहुत फायदा होगा। और उसके बीच में आपको वो चमत्कार वाली स्लाइड 1 से लेके 15 स्लाइड में आप खत्म कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका टॉपिक कितना लंबा है और एक एक स्लाइड पर आप कितना बोल सकते हो, कितनी तैयारी है। अगर मुझे एक स्लाइड पे दे दो, मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ एक स्लाइड। आप भी बोलोगे जब आपको यूज टू हो जाओगे, अपने कंटेंट में मास्टरी हो जाएगी आपकी, डिलीवर करने में। कंटेंट में मास्टरी है, डिलीवरी में मास्टरी बिना देखे। एक ही स्लाइड पर एक टॉपिक लिख दो, 3 घंटे तक लोगों को एंगेज रखो, सिर्फ भाषण नहीं, एंगेज रखो। तो वो 1 से 15 स्लाइड आपको वहां रखनी है। ऐसे करके ये हमारे पार्ट्स हैं कोर्स की पीपीटी के। अब पहली स्लाइड जो है, आप देखेंगे कि इसमें एक अट्रैक्टिव ग्राफिक्स होना चाहिए, चमकदार ग्राफिक्स। अगर चेहरा हो, मुस्कुराता चेहरा हो, बहुत अच्छा है। कोशिश करो अपने प्रोडक्ट में एक मुस्कुराता चेहरा रखो, अपना रखो, ऑनलाइन से लेके रखो, किसी का भी रखो। लोग एनिमेशन रख देते हैं, नो। जब ह्यूमन इंटरेक्शन होता हो तो आप स्माइलिंग ह्यूमन फेस रखो। ये साइकोलॉजी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे, एंगेज होते हैं, आई कैप्चरिंग होता है। तो आपका कंटेंट आई कैप्चरिंग हो। अब मैंने ये जो बन वाली इमेज रखी है, ये आपको आई कैप्चरिंग होगी, गोल्डन बन। साइड में सब कुछ फीका लग रहा होगा, गोल्डन बन अच्छा लगता है। तो एक जगह आंख टिकी आपकी। तो पहली स्लाइड पे अट्रैक्टिव ग्राफिक्स हो, नाइस इन्फोग्राफिक्स हो। ये वन भी मेरा नाइस इन्फोग्राफिक्स का एग्जांपल है, कहीं से उठा के लाया हूं, मुझे जरूरत नहीं थी इसकी, पर जैसे ही मैंने रखा आपकी आंखें टिकी उस पर। कुछ हटके है, आपका लोगो होगा, कोर्स का टाइटल होगा और सब टाइटल हो। ये 5 चीजें आपके टाइटल स्लाइड पर हो। कैसे? जैसे इस पर है, ये देखें। मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, स्माइलिंग फेस है, मुझे बस इतना चाहिए था। और मुझे एक प्लेटफॉर्म पर मिला ये फोटो, जहां पर फ्री इमेजेस थी, वहां से मैंने लेके इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस मास्टरी लिखा, और ये टाइटल आ गया, ये स्माइलिंग फेस आ गया आई कैप्चरिंग के लिए, और यहाँ शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये सब टाइटल आ गया, नीचे लोगो आ गया। 5 चीजें कंप्लीट हो गई, टाइटल इमेज कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्लाइड आपकी ऑब्जेक्टिव को दिखाती हो। इमीडिएट टाइटल के बाद आदमी को लगता है मेरा क्या, व्हाई मी, व्हाट इट हैज फॉर मी, व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम हियर, व्हाट इज टेक अवे हियर। ये जो ट्रेनर ने मुझे बुला तो लिया फ्री में, या 100 रुपए देके, 200 रुपए देके, 500 रुपए देके, लो कॉस्ट में, या इसने इतने लोग इकट्ठे तो कर लिए, पर इसमें से मुझे मिलेगा क्या? सबकॉन्शियस माइंड की जो क्वेश्चनिंग थी, आप उसको आंसर कर दो यार, बहुत अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर। क्या वैल्यू ऐड करेगा ये प्रोग्राम? 4 बार कह दो ये बात, 4 बार। जैसे सेल्स पर्सन बोलते हैं ना, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। आप जैसे घुसते हो, आपको वो बता देता है कि आपको इससे क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसे ही सेकंड स्लाइड आपकी आदमी को ये बता दे कि आफ्टर दिस कोर्स, आफ्टर दिस वेबिनार, आफ्टर दिस वर्कशॉप, यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाओगे, क्रिएट, सेल एंड डिलीवर अ ट्रेनिंग कोर्स ऑनलाइन।
अब आदमी को लगेगा यही तो चाहता था, दिस वॉज माई रिक्वायरमेंट। 1.5 घंटे में अब ये ट्रेनर मुझे बताने वाला है कि कैसे क्रिएट करें कोर्स, कैसे बेचें, कैसे डिलीवर करें। ऐसा हो सकता है कि 1.5 घंटे में? देखते हैं। अब वो 90 मिनट्स के लिए मन में एक इच्छा जगी। अब जब मन में इच्छा जगी, जरूरत दिल में थी, अब आपकी सेंसेस और माइंड दोनों ट्रेनर के शब्दों की तरफ लग जाएंगे। समझना। सेकंड स्लाइड ऑब्जेक्टिव को क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेट करती हो। 2 बार 3 बार करो इस बात को बोल बोल के, जी हाँ आप कर सकोगे। क्रिएट, सेल एंड डिलीवर अ ट्रेनिंग कोर्स ऑनलाइन। मेरी बात से आप सब सहमत हैं? यस सर। ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट, थैंक यू जी। तो आप सेकंड स्लाइड को 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके से लोगों को बताओ ताकि उनके मन में एक बैठ जाए। आप क्या पढ़ाओगे ये तो बाद में पता चलेगा, जो रुकेगा उसको, उनको क्या फायदा होगा, ये बात 2 बार 3 बार 4 बार बोल दो वर्ड्स में, ताकि एक बार अगर कोई ना सुने तो दोबारा सुने, आपके फ्लैश होके स्क्रीन पे आए, 2-3 तरीके से फ्लैश होके आ जाए, टाइपराइटर से चलाए, एनिमेशन दे दो उसको, तो आदमी को पता चल जाए कि इससे मुझे ये फायदा होने वाला है। अब वो उस फायदे को ढूंढेगा। ट्रेनर से भले गलती होती है, ट्रेनर की लैंग्वेज में कोई इशू है, ट्रेनर की डिलीवरी में कोई इशू है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वो अपना फायदा ढूंढेगा, इस 1.5 घंटे में मुझे वो मसाला कैसे मिले। बस अब आपका काम शुरू हो गया। आपने एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, एक इच्छा पैदा कर दी, एक भूख पैदा कर दी आपके ऑडियंस में, और जो इच्छा से वो आए हैं अब आपको सुनेंगे। अब आप फॉर्मेट ऑफ द कोर्स बताओ। ये 60 मिनट ड्यूरेशन का कोर्स है, आप 90 मिनट्स बता सकते हैं। 15 मिनट इंट्रोडक्शन था, 10 मिनट गुजर गए, 5 मिनट में जल्दी से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख दो ताकि मैं समय पे आपके इस सेशन को शुरू कर दूं, और जो कुछ सीखने आज आप यहाँ आए हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूं कि 60 मिनट में मैं आपको वो जादू सिखा दूं कि आप ऑनलाइन कोर्स बना सकें। अब लोग फटाफट इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब Q&A सेशन, लास्ट के 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पेन और पेपर लेके बैठिएगा, आप जल्दी से नोट कर लेना या चैट बॉक्स में डाल देना। हम आपका लास्ट में क्वेश्चंस के सारे आंसर्स देंगे, आपको आंसर दे के जाएंगे, तो लास्ट में रुके रहना है। अब क्या होगा, लोग जल्दी नहीं भागेंगे। अगर किसी का कोई डाउट क्वेरी है नोट करेगा और Q&A सेशन का इंतजार करेगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर सको Q&A से पहले। तो आपने माहौल बना दिया फॉर्मेट के थ्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो आप? हैंड रेज करके, आपने माइक नहीं दिया। इसके अलावा और भी आप कुछ रूल्स, ये लैंग्वेज में इंग्लिश में होगा, किसी को हिंदी में पूछना है तो वो आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को नहीं समझ में आए, किसी को रिपीट चाहिए तो हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी पूरे सेशन का फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करना है इस स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। हार्डली 2 मिनट लेगा। अब आप आगे चले गए इंडेक्स में, यहां से सीखोगे क्या? पूरे इंडेक्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया। लाइक ये एग्जांपल स्लाइड है आपके सामने। पहला लेसन है ऑनलाइन एकेडमी की प्लानिंग करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे। दूसरे मॉड्यूल में हम प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्शन करेंगे, थर्ड में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, और चौथे में आपको जादू बताएंगे कि कोर्स तैयार कैसे होता है। और अब इससे आगे आप थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते बताते जाओ, उसके आगे जबरदस्त जादू है कि आप बेचोगे कैसे, कैसे एक ट्रेनर को हम मार्केटर बना सकते हैं, कैसे एक ट्रेनर मार्केटर बन सकता है, ये लास्ट के 2 मॉड्यूल्स में समझ में आएगा। आप उनको मत कहना कि आप रुके रहिएगा, आप तो वो जादू कर दो, बोला जो मसाला है वो लास्ट के 3 मॉड्यूल में है, तो अब आदमी खुद ही रुकेगा। बोला ट्रेनर तो मैं हूं ही, मार्केटर बनना है मेरे को, तो वो लास्ट में मिलेगा तो मुझे रुकना है। अब साइकोलॉजिकली आपने इंपैक्ट बना दिया, माहौल बना दिया पूरे रूम में जितने लोग बैठे हैं। अब वो सब लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, आपकी कमियों की तरफ नहीं, आप क्या देना चाहते हो उसकी तरफ उनका ध्यान जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। कोर्स मॉड्यूल कैसे बनेगा? कोर्स मॉड्यूल में जो हमने बीच की जो स्लाइड है, 5वीं स्लाइड से लेके 15वीं तक या 10वीं तक, जहां कोर्स को एक्चुअली डिलीवर कर रहे हो आप, उसमें 3 से 5 टॉपिक रखो बस।
if your webinar is for 60 to 90 minutes duration, then please do not go beyond 3 to 5 topics to explain. बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। कम टॉपिक्स को ज्यादा एक्सप्लेन करना है आपको ताकि लोगों को समझ में आ जाए। कीप द कंटेंट शॉर्ट एंड एम्फेसिस मोर एंड मोर, बार बार एम्फेसिस करो, उसको रिपीट करो। एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा में समझ में आएगा। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज बैरियर होता है, बहुत सारे लोगों को इंटरनेट बैरियर होता है, बहुत सारे लोगों के पास अच्छा माइक नहीं होता। तो आपने अगर 2 बार 3 बार रिपीट किया तो ज्यादा लोगों तक वो कम्युनिकेशन पहुंचने के चांस होते हैं अच्छी तरीके से। और जिसने एक बार समझ लिया वो छोड़ के नहीं भाग रहा है, दोबारा पक्का हो जाता है उसको। 3 बार भी बोला आपने तो उसका पक्का हो जाता है वो टॉपिक, अच्छा लगता है उसको। चौथा, जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ डिलीवरी लूप। पहला बहुत इजी, जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर 1000 रुपए के लिए, ऐसा सवाल होता है, बच्चा भी सॉल्व कर दे। लोग सोचते हैं ये सवाल रखा ही क्यों था केबीसी में, वो बिल्कुल जनरल सवाल होता है। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। दूसरा सवाल 5000 रुपए के लिए, पहले सवाल में कोई लाइफलाइन नहीं लेता, दूसरे सवाल में भी लाइफलाइन की जरूरत नहीं पड़ती, और तीसरे चौथे से आगे लाइफलाइन की जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप भी क्या करोगे, जनरल से स्पेसिफिक डेप्थ में उतरते जाओगे। पहला वाला बिल्कुल जनरल जाने दो, दूसरे वाले को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स 2 चूड़ी चढ़ाओ, फिर तीसरे वाले को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, बस वहां आप खेल कर दो तीसरे वाले में। ऐसे करके आप अपने मॉड्यूल्स अपनी पीपीटी पर रखेंगे और हर एक टॉपिक पे क्यूरियोसिटी और सस्पेंस क्रिएट करो ताकि लोग कुछ सोचे। सब कुछ नहीं बताना, कुछ छोड़ना लोगों के लिए, बिटवीन द लाइंस कुछ गैप्स छोड़ो, थोड़ा गैप लो बोलने में, सामने वाला कुछ सोचे, उनके दिमाग लगे रहे आपकी तरफ। ऐसा कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। अब इफेक्टिव कोर्स बनाने के लिए क्या टिप्स चाहिए वो मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि कल आपको वो इफेक्टिव कोर्स एक बना के देना ही देना है, ठीक है। आप प्लीज एक इफेक्टिव कोर्स तैयार करें, एक पीपीटी तैयार करें 60 से 90 मिनट की वेबिनार के लिए, जो सबसे अच्छी स्किल हो आपकी, सबसे अच्छा कोर्स हो उसके लिए। तो आपको इन्फोग्राफिक्स यूज करना है, पहली टिप। अट्रैक्टिव ग्राफिक्स यूज करने हैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्फोग्राफिक्स, सबसे सिंपल चीजों को इन्फोग्राफिक्स से कर दो, होती क्या है मैं दिखाता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जहां आती है ग्राफिक्स रखो, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जाता है, बहुत बेहतरीन कनेक्ट बनता है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। तीसरा, वीडियो अगर एक लगा दो उसमें तो लोगों को मजा आ जाता है बीच में। अगर कोई म्यूजिकल वीडियो हो जो टॉपिक को एक्सप्लेन करता हो या कोई एग्जांपल देता हो, मजा आ जाता है, बहुत अच्छा फील होता है, कनेक्ट हो जाते हैं, आपको टाइम मिल जाता है पानी पीने का, क्योंकि जब दूसरे तीसरे मॉड्यूल तक आप पहुंच जाते हो तो बहुत कुछ बोल चुके हो। आप वीडियो लगाओ, इधर पानी पियो, फिर वापस बोलना शुरू कर दो, आपको सांस लेने की जगह मिल जाती है। एंड फोर्थ, यूज ट्रांजिशन टू मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। अब ट्रांजिशन क्या होता है मैं बताता हूं अभी। आप एनिमेशन, एक टॉपिक को ऑर्डर में एक्सप्लेन करने के लिए 1 by 1 प्रेजेंटेशन आती है, उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। एक ही स्क्रीन पर कई चीजें एक के बाद एक आए, जैसे यहां आप देखेंगे ये पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये एनिमेशन है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में अगर कोई क्रिएटिव इंप्रेशन है, जैसे ये झटके से आया, इसके बाद वाला मैं देखता हूं, ये देखो, ये ट्रांजिशन है, और ट्रांजिशन के बाद एक ही स्लाइड पे जो हो रहा है ये एनिमेशन है। आप एनिमेशन और ट्रांजिशन को खूब यूज करो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, अच्छा लगता है, कुछ और होता है। और क्या कर सकते हैं, क्रिएट योर ओन डिजाइन। प्लीज रेडीमेड डिजाइन्स ऑनलाइन इंटरनेट से लेके मत यूज करना। डिजाइन्स, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ, कंटेंट आप मिक्स कर सकते हो, कहीं से लिया है आपका है, थॉट से थॉट आपका है, कॉम्बिनेशन आपका है, डिलीवर आप कर रहे हो, पर डिजाइन कुछ अपना बनाओ। जैसे मैंने यहाँ ये 1 को उठा के कहीं और से लिया, ये डिजाइन को कहीं और से लिया,
ये सब उठा उठा के इधर उधर से ऐसा बनाया है कि अट्रैक्टिव लग रहा है, आपका डिजाइन हो, किसी ने देखा ही नहीं हो ऐसा। हर वेबिनार में आपका डिजाइन चेंज हो जाए, ताकि अगर कोई रिपीट करके भी आता है तो उसको अच्छा लगना चाहिए, चेंज लगना है। अच्छा ये पिछली बार तो नहीं था, अभी बड़ा अच्छा बना है। अब ये देखो एक ट्रांजिशन आया, कितने अच्छी तरीके से यहाँ आया है। हर एक स्लाइड आपका एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। एवरी स्लाइड शुड सीम लाइक एन एडवर्टीजमेंट बाय यू। हर स्लाइड इतनी बढ़िया हो कि वो आपके बारे में कुछ कहती है। एंड every slide should catch attention of the audience। अभी देखो बात वही है, मैं इन्फोग्राफिक्स रखा है, 3 का अक्षर है, अटेंशन है, 4 वर्ड है, बट वो इस तरीके से रखे गए कि वो आपको यहाँ अच्छा लगता हो, आपको अच्छा लगता हो। नेक्स्ट, वाव, ऐसा लगना चाहिए, अरे वाह क्या चीज है, ये देखो ये फोटो रखा है, वाव। सेंसेस बोर ना हो, सामने ऑडियंस में बोरिंग ना आए, उसमें फ्रेशनेस बनी रहे, इसके लिए आप वाव फैक्टर रखो अपने प्रेजेंटेशन में। करना क्या है, कुछ लॉजिक्स ऐसे लगाने हैं, कुछ इमेजेस ऐसी लानी है जो वाव फैक्टर पैदा कर दे, जो कुछ हटकर हो, ऑड हो। बहुत सिंपल है, मैं ये दिखा रहा हूं आपको। ये देखो इन्फोग्राफिक्स आर ग्रेट, 5 का अक्षर और 3-4 वर्ड लिखे हैं मैंने, पर बड़े अच्छे लग रहे हैं। इसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं, यानी टेक्स्ट को ग्राफिक्स फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। When the information is being expressed in the form of graphics, that is called infographics। और इन्फोग्राफिक्स में एक्सप्रेशंस बहुत पसंद किए जाते हैं लोगों को। हाउ शुड यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये स्लाइड। द आंसर इज इन्फोग्राफिक्स। क्वेश्चन था हाउ शुड यू प्रेजेंट इन्फो, द आंसर इज इन्फोग्राफिक्स। Something graphical format should be there. In case you want to express the 50%, will Google infographics after seeing this? ठीक है, 50% will Google infographics after seeing this। ये देखने के बाद लोग infographics को Google करते हैं। कितने बढ़िया तरीके से एक सेंटेंस को समझाया है। 1 out of 10 people will copy this presentation। नेक्स्ट, फॉन्ट, अच्छे वाले फॉन्ट यूज करें। प्रेजेंटेशन के लिए बोल्ड फॉन्ट लें, भरे हुए फॉन्ट लें, सो दैट सामने अगर इंटरनेट किसी का कमजोर भी हो तो आपका इन्फोग्राफिक्स अच्छी तरह विजिबल हो उनके स्क्रीन पे। तो फॉन्ट्स हैवी लेने चाहिए प्रेजेंटेशन में, लाइक दिस। ये देखिए टेक्स्ट फॉन्ट, बहुत सिंपल 4-5 वर्ड लिखे, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बिग इज ब्यूटीफुल, बड़ा साइज, जितना बड़ा साइज दिखाओगे उतना अच्छी तरीके से आपके ऑडियंस को दिखाई देगा। बिग इज ब्यूटीफुल, लाइक दिस, थिंक बिग, अच्छा लगता है। एंड बोल्ड, मेक देम बोल्ड। कलर्स, कोशिश करें फ्लैट कलर रखें, फ्लैट कलर, ब्लैक हो गया, आपका रेड कलर्स को कम यूज करते हैं, ब्राउन ले लिया हमने, ब्लू ले लिया हमने, ग्रीनिश ले लिया हमने। ये कलर्स पूरी स्क्रीन एक ही कलर पे होगी, यानी एक स्लाइड एक ही बैकग्राउंड कलर पे हो तो अच्छा लगता है, और डार्क कलर हो तो अच्छा लगता है। एंड इमेजेस से मोर देन 1000 वर्ड। एक इमेज 1000 वर्ड से ज्यादा एक्सप्रेस कर देती है, तो यूज more and more images to express your idea, your thought, your thing, your module। कैसे? Let's see. There is one image wherein one cat is teasing one lion. So there is one logic how this is possible। किया क्या है, एक लॉयन की इमेज पर कैट की इमेज को लाके इम्पोज कर दिया, दैट्स इट। एक लॉजिक क्रिएट हुआ, दिमाग में गया ऐसे कैसे हो सकता है, शेर और बिल्ली पास कैसे आ सकते हैं। Means one image is creating a lot of curiosity, how it is possible, but because it is visible here, तो आप शक भी नहीं कर सकते और आप इसको सच भी नहीं मान सकते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम पर शुरू हो गया, माइंड शुरू हो गया। ऐसे करके इमेजेस को ज्यादा रखना है टू एक्सप्रेस योर आइडिया। एंड कॉन्ट्रास्ट इज योर फ्रेंड। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अगर
बैकड्रॉप या बैकग्राउंड कलर आपका डार्क है तो टेक्स्ट का कलर लाइट ले और अपोजिट है। पीछे ब्लैक है तो व्हाइट में लिखें और पीछे व्हाइट है तो ब्लैक में लिखें, पीछे रेड है तो ब्लैक में लिखें, बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये कॉन्ट्रास्ट है। ऑफर अनाउंसमेंट, अभी हम लास्ट पे आ गए हैं। थर्ड लास्ट स्लाइड पे ऑफर अनाउंस होना चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल है। So do you want to master this skill completely? Then join our master program, that is Comprehensive Digital Marketing Master 2021. It's a wonderful program with 90 days duration, and specialty of this program is one-to-one personalized coaching. Means you can ask, you can connect, you can call one master trainer unlimited times, and till the time you are not clear at your thought, and he's supposed to answer you, he's supposed to support you, he's supposed to coach you, and you are free to join unlimited courses during this 90 days duration, and unlimited learning option is there. Live demonstrations are there in live classes, and after live classes, one-to-one live demonstrations also are there. And you can get recordings of the session in case you skip the live sessions, then don't worry, you will get the recorded lessons. And after this course, you are going to have a certification wherein the organization will help you to get work on that particular certificate. That support is also available. So this is a wonderful program. Those who are actually thinking to go in this field, so this is one ultimate opportunity is for them. They can book their seat right now, because for 1 month the organization takes, the academy takes only 10 enrollments. So don't wait, please call at this particular number and book your seat now. Simple. आपने 4 स्टेटमेंट दिए, सामने वालों को मौका ही नहीं दिया, सबकॉन्शियस माइंड में पूरी की पूरी बात छाप दी। अब उनके दिमाग में सवाल उठेंगे तो आपने Q&A की स्लाइड फ्लैश कर दी। यहाँ अब कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हो या आपकी डिलीवरी के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, यहाँ आप वो पूछ सकते हैं। आपने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, एक भी आदमी अभी तक आपके वेबिनार को छोड़ के गया नहीं था। उससे पहले Q&A आने से पहले आपने पूरा का पूरा अपना काम कर दिया। इतने लोगों में मार्केटिंग बहुत क्लोजली कर दी। अब Q&A सेशन करने के बाद एक थैंक यू स्लाइड बड़ी अच्छी सी, और दैट्स इट, बन गया आपका एक कोर्स डिलीवरी के लिए तैयार। बीच की जो स्लाइड मैंने छोड़ी है वो एरिया आपको करना है। ये वाली स्लाइड्स के जो मैंडेटरी स्लाइड हैं ये मैं आपको भेज दूंगा। आई थिंक अब आपके जो क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पीपीटी में ही आप एम्बेड करने के? हाँ, प्री रिकॉर्ड वीडियो बड़ी आसानी से उसको पीपीटी पर उसका लिंक रख देते हैं, और जब वो पीपीटी आपके स्लाइड पर दिखाई देता है उसको क्लिक करो, वो वहीं से प्ले होना शुरू हो जाता है। या आप रोक के यूट्यूब को पीछे बैकग्राउंड में आप ओपन करके रखो, वहां से प्ले कर दो, दोनों जगह से वो हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। आप बनाओ फिर मैं आपको करवाऊंगा। यूट्यूब पे ऑन करके फिर इधर प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाने का हो? नहीं, प्रेजेंटेशन 1 सेकंड के लिए यहाँ से जैसे शेयर स्क्रीन मैंने किया हुआ था, अभी मैंने शेयर स्क्रीन हटा दिया। अब मैं यहाँ से शेयर स्क्रीन लगाऊंगा तो यहाँ मैं गया, मैंने ये देखिए YouTube ओपन किया और यहाँ से YouTube से कोई भी वीडियो ये लीजिए, ये ओपन होगा यहाँ से। इन मीटिंग सेटिंग्स में है वो जी, शेयर स्क्रीन ऑप्शन कहाँ पे है? शेयर स्क्रीन ऑप्शन जब आप जूम पर जाएंगे ना सर, तो आपको आपके नीचे जो मेन्यू बार है, टूल बार है, उसमें सामने ही दिखाई देता है। हाँ हाँ, शेयर करके है वो, एरो दिखाया है वो।
हाँ शेयर स्क्रीन है, आपको आया ना? ग्रीन कलर का। नहीं, मैं आपको एक मिनट में आपको यही बताता हूँ। ग्रीन कलर का एरो है, शेयर लिखा है उधर वो। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। जितेंद्र जी, आपके नीचे आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं लैपटॉप से? मोबाइल। मोबाइल से आप देखना, मोबाइल से नीचे कहीं आपके टूल बार पर लिख के आ रहा है क्या शेयर स्क्रीन? शेयर है, शेयर लिखा हुआ है और ग्रीन कलर में है वो, और उस पे एरो दिखा है वही। तो शेयर करो, मैंने आपको राइट दिया शेयर करने का। This will stop other screen sharing. Do you want to continue? यस प्लीज 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 करो, मेरा शेयर स्क्रीन हटा देगा और आपका ला देगा। हम सबको आपका मोबाइल का स्क्रीन दिखाई देगा अभी थोड़ी देर में। ओके करो। उसमें बहुत ऑप्शन आ रहा है, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट। तो जो कुछ ओपन हो उसमें से फोटो, कोई फोटो दिखाना चाहते हो गैलरी से, किसी फोटो को ला देगा अभी। आप फोटो पर क्लिक करो, या YouTube कर लो, अगर आपने YouTube कर सकते हो तो YouTube कर लो। ये फोटो शेयर किया, आ गया हमारे स्क्रीन पे, आ गया। ये एक रिवर है, उसमें शायद बीच में बोट है। ये आ गया अभी, आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सनराइज हो रहा है उधर, सनराइज या सनसेट है। और एक हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं आप। जितेंद्र सर, आप वेब यूआरएल लिखेंगे उस पे? जी वेब यूआरएल लिखेंगे? क्या है? शेयर स्क्रीन में वेब यूआरएल शेयर कर देंगे सर। हाँ, वो अगर आपको सीधा वेब यूआरएल शेयर करना है तो वहां से वेब यूआरएल शेयर कर सकते हैं। कहाँ से? अगर आपको वेबसाइट सीधे दिखाना है ना सर, तो उसमें जब आप मोबाइल से जा रहे हैं तो वो जो ऑप्शन दे रहा है ना, उसमें से वेब यूआरएल के ऑप्शन पे जा सकते हैं। वो हम एक अलग से कर सकते हैं। हम लास्ट वाले सेशन में जब ये तैयार हो जाएगा सर, हम इसको लाइव करेंगे। एक दिन आप जब बना लोगे इसको तो आपसे लाइव करवाएंगे इस कोर्स में, तब ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर देंगे। आज तो ये जो पीपीटी आपको बनानी है कल, आप प्लीज उसके लिए टॉपिक को फाइनल कर लो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फ्री वेबिनार्स कंडक्ट करनी है इस कोविड टाइम में। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जो अगला 1 महीना 2 महीना जो हार्ड टाइम है कोविड का, जिसमें लोग ज्यादा घर बैठे हैं, आप उस टाइम को यूज करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स कर डाला। आप एक पीपीटी बनाएं कल, और वो जैसी भी बनती है प्लीज आप मुझे पर्सनल भेज सकते हो अलग से मेरे व्हाट्सएप पे। 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं हम उसे, उसमें क्या और ऐड हो सकता है, क्या और अच्छा बन सकता है, हम 1-on-1 कर लेंगे। प्लीज आप कल इसे बनाकर एक पोस्ट कर लो। यस सर। चलिए, तो आज हमारा टाइम पूरा हो गया है, यही इसी के साथ हम इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। सर गुड नाइट। ओके, बाय।